Hello friends, good morning, and today we will continue our earlier topic, the trigonometrical identities. It's clear? Okay friends. So now I have mentioned some of the problem on your screen and we have to make the solutions of these problems. And these type of the problems are very important on the behalf of the examination. It's clear friends? So I have mentioned 1, 2 and 3 problems, so we make the solutions one by one. It's clear? Okay friends. So first of all, I am going to sort out the first one. So earlier I have told you there are the two sides. First one is the left hand side and second one is the right hand side. So now make the solution of left hand side. Solve left hand side. It's clear? So first of all mention the LHS. What is the LHS? This is sin 4 theta minus cos 4 theta upon sin square theta minus cos square theta. It's clear? Okay friends. But earlier I also told you one thing more, that we also use of the sum of algebraic expressions. यहाँ हमारे पास में जो algebraic expressions की जो identities है वो भी यूज करनी है. अब यहाँ हम लोग इसको identity फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. So it will be sin square whole square and it will be cos square theta whole square. It's clear? Now this is sin square theta minus cos square theta. Okay friends. Now it is in the form of a square minus b square. A square minus b square equals to a minus b and a plus b. It's clear? So now put these value in the form of this identity, a minus b. So this is known as a. आप इसको a डिनोट कर ले, इसको b डिनोट कर ले. ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं यहाँ लिख रहा है. सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. दिस इज ए माइनस बी एंड नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. ओके फ्रेंड्स. एंड व्हाट्स अबाउट द डिनोमिनेटर? दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. It's clear? So this is sin square minus cos square and this is also sin square minus cos square. So they will be cancelled to each other. It's clear? And what's about the next? This is sin square theta plus cos square theta. And we know that sin square theta plus cos square theta equals to 1. So finally we get 1. And what's about this one? This is the RHS. It's clear friends. So what is the rule of the solving of these type of the problems? The most typical part, which is the LHS. So first of all make the solution of the LHS and it should be equal to right hand side. It's clear? So this we have got equal to right hand side. It's clear? Okay friends. Now we are going to discuss the next one. Now friends, this is the second question. It is very important question. ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको देखिए आप. सबसे पहले सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज द एलएचएस? दिस इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. इट्स क्लियर? So first of all we have to change them in form of sin and cos. It is a very simpler way. Whenever we are solving the any type of the problem, so first of all we have to change them in the form of sin and cos. तो सबसे पहले हम लोगों को इसको sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So first one, this is tan theta. तो tan theta equals to sin theta upon cos theta. What's about the denominator? This is 1. And this one is cot theta. So cot theta equals to cos theta upon sin theta.
Now in next one, this is cot theta, so this will be cos theta upon sin theta, and what's about the denominator? 1 minus sin theta upon cos theta. It's a clear? Okay. Now what's about the next step? We must take the LCM of the denominator in both sides. अब इसका हम लोगों को LCM फाइंड करना है. तो what will be the LCM? The numerator will be say sin theta upon cos theta. Now what is the LCM? So LCM is, friends, sin theta. So one sin ja sin, then sin multiply by 1 equals to sin theta. Sin to sin cancel, remaining cos. That's why this is the cos theta. It's a clear? Now in the next one, the numerator will remain same, cos upon sin theta, and take out the LCM of the denominator, and the LCM is cos theta. It's a clear? So 1 cos the cos, so it will be cos theta, and cos 1 ja cos 1, so 1 multiply by sin, this is sin theta. It's a clear? Now the denominator will change in its reciprocal, and it will multiply with the numerator. Denominator will change in reciprocal and multiply with numerator. So it will be sin theta upon cos theta into sin theta upon sin theta minus cos theta. Now this one is cos theta upon sin theta into cos theta upon cos theta minus sin theta. Clear, friends? Now sin multiply by sin square theta, and what's about the remaining? This is cos theta and sin theta minus cos theta. It's a clear? Okay. And what's about this one? Cos multiply by cos square theta. And what's about the remaining? Remaining is डिनोमिनेटर में एक फॉर्म में साइन थीटा एंड कोस थीटा माइनस साइन थीटा. क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है. अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो देखिए, दिस इज साइन माइनस कोस एंड दिस इज कोस माइनस साइन. दोनों में साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो एलसीएम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू टेक द माइनस कॉमन. अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग. किस तरीके से? लुक आउट योर ऑन स्क्रीन. साइन स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा. इट्स अ क्लियर? नाउ दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, एंड नाउ वी हैव टेक माइनस एज ए कॉमन. माइनस, so it will be sin theta, and now it will change in sin theta minus cos theta. जब बाहर माइनस ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो अंदर जो ब्रैकेट में जो नंबर है, जो डिजिट है, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाने वाला है और प्लस वाला माइनस में, यानी उनके साइन चेंज हो गए. अब ये देखिए, अर्लियर इट वाज द साइन इन माइनस, नाउ इट इज इन प्लस. अर्लियर कोस वाज प्लस, नाउ इट इज इन नेगेटिव फॉर्म. इट्स अ क्लियर? बोले सर ऐसे कैसे? अब इस माइनस से वापस मल्टीप्लाई करके देखिए. इस माइनस से इस कोस को मल्टीप्लाई किया तो कोस प्लस का हो जाएगा. इस माइनस को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. अब यहां एलसीएम लेना इजी हो गया फ्रेंड्स. साइन माइनस कोस एंड साइन माइनस कोस. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द कंप्लीट टर्म? द कॉमन ऑफ द कंप्लीट टर्म इज sin theta cos theta and sin theta minus cos theta. It's a clear? Cos theta sin theta cos theta and sin minus cos. It's a clear? Now this cos to cos cancel, sin minus cos to sin minus cos cancel. What is the remaining? This is the sin. Then this sin multiply by sin square. What will be? It will be sin cube theta. Okay friends, यहां हमारे पास में आ गया
साइन क्यूब थीटा। एंड व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट वन, अब इसमें साइन कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग कोस रहेगा। एंड व्हाट्स अबाउट दिस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इट विल चेंज एंड नाउ इट इज कोस क्यूब थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब अपने को वही पहले वाला आइडेंटिटी यूज करना है, एलजेब्रिक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो व्हाट इज द ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट्स अ क्लियर? सो नाउ we have to change this one, sin theta, sin mean a, sin theta minus cos theta. So this is in the form of a minus b. A square mean sin square theta plus ab, sin theta cos theta plus b square mean cos square theta. Okay friends, and what's about the denominator? This is sin theta cos theta and sin theta minus cos theta. It's a clear? Okay. Now this is sin minus cos and this is sin minus cos. Both are cancelled to each other. What is the remaining? This is sin square theta plus sin theta cos theta plus cos square theta. And what is the denominator? This is sin theta cos theta. Okay friends, now what is the right hand side? This is right hand side, and there are the how many terms? 1, 2 and 3. 1 plus tan theta plus cot theta. ठीक है, अब इसको इसी में कन्वर्ट करना है। इट मीन जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की ईच टर्म को डिवाइड करेगा, यानी सब में उसका डिवीजन होगा। कैसे? दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इट्स अ क्लियर? उसकी एक एक टर्म में सभी को सेपरेट करके और हमने उसका डिवाइड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये साइन है और ये साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ इस कोस के स्क्वायर से ये कोस कैंसिल हो गया। अब रिमाइंडर क्या रह गया आपके पास में? दिस इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज 1 एंड दिस इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन अपॉन कोस? साइन अपॉन कोस की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा प्लस 1, और कोस अपॉन साइन का वैल्यू कोट थीटा। सो दैट्स वे वी हैव गेट RHS. दिस इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा। इट डजेंट मैटर, ये फर्क नहीं पड़ता कि सर 1 यहाँ आ रहा है या इसमें यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये एडिशन में हो रहा है और एडिशन में कहीं भी मैनेज हो सकता है। इट्स अ क्लियर? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज देम इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस। तो टेन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेन थीटा? दिस इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सो दैट्स वे वी हैव चेंज, दिस इज साइन अपॉन कोस। इट्स अ क्लियर? ओके फ्रेंड्स, नाउ this is the cot theta, so what is the value of the cot? Cos upon sin. Similarly, we have put the value same in this one. Now we have take the LCM of the denominator. जो denominator है उसका LCM ले लिया, यहाँ LCM ले लिया, यहाँ LCM ले लिया। उसके बाद में फ्रेंड क्या होता है कि डिनोमिनेटर हमारे पास में ऊपर जाकर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल होकर के इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ऐसा हो गया। फाइनली हमारे पास में ये डिजिट्स आ जाते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर जो है, इन डिनोमिनेटर दिस वन इज साइन माइनस कोस एंड दिस इज द कोस माइनस साइन, सो दैट्स वे वी हैव टेकन आउट द माइनस इन द न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर। व्हाई? टू मेक द बोथ डिजिट सेम, दोनों को सेम करने के लिए हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। इस माइनस को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस प्लस का हो जाएगा।
नाउ वी हैव टेकन द एलसीएम। ये एलसीएम ले लिया तो फ्रेंड्स क्या हो गया, ये हमारे पास में साइन माइनस कोस और कोस, तो साइन माइनस कोस और कोस का सारा कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, साइन। इस साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में उसमें आ गया कोस क्यूब थीटा। अब ये हो गया ए माइनस बी या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज किया। तो फाइनली हमारे पास में ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में रख दिया। साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, रिमेनिंग ये रह गया। अब जो न्यूमरेटर की जितनी भी टर्म्स है 1 2 3, ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, उसमें डिनोमिनेटर की से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म। फाइनली वी हैव गॉट साइन अपॉन कोस प्लस 1 कोस अपॉन साइन। नाउ वी हैव टू चेंज देम अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड। अब इसको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज करना होता है, 1 + 10 + कोट, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब फ्रेंड्स मैंने इसके साथ में एक वैल्यू और लिखी है यहां, दिस वन 1 + sec एंड कोसेक। बोले सर ये क्यों लिखा है, बिकॉज इन अदर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट LHS इज द सेम बट RHS इज डिफर। अब यहां कितनी टर्म आ रही है फ्रेंड्स, ये ध्यान रख लेना, 1 और 2, 2 ही टर्म्स आ रही है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग यहां तक तो एज इट इज करने वाले हैं, लास्ट का 1 2 3 ये 3 स्टेप्स चेंज करने वाले हैं। क्लियर, कैसे वो देखिए। What we are going to do, last 3 steps. So this is sin square theta and this is cos square theta. So sin square theta plus cos square theta is equal to 1. And what's about the remaining? Sin theta cos theta. Okay. And it is divided by sin theta cos theta. Now separately divided, the each term of numerator will divided by denominator. Okay friends. So 1 upon sin theta cos theta plus sin theta cos theta upon sin theta cos theta. It's a clear? Okay. sin cos से sin cos डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, 1 रह गया। What is the value of the 1 upon sin? 1 upon sin is equal to cosec theta. And what's about 1 upon cos? This is sec theta plus 1. So what is your RHS? 1 plus sec theta cosec theta. It's a clear? Okay friends. So this is very important question. Okay friends. So आप लोगों को इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान से चेक कीजिए और इसका आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर आपका कमांड होता चला जाएगा। ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग वन मोर एंड दैट इज द थर्ड वन ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए, वीडियोस को बार बार देखते रहिए, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। और जो आप लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, फियर है कि साहब ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी टफ साइड ऑफ द मैथ्स, इट इज़ नॉट द टफेस्ट, इट इज़ द वेरी ईजियर। बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। अपने दिमाग से इसका फोबियो को निकाल दीजिए, फोबियो खत्म तो ऑटोमेटिकली आपका इस पर कमांड हो जाना है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट वन। सो व्हाट इज द LHS? LHS इज sin A प्लस cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square. So now we will use of algebraic identifications, and what are these? A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो A स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर A प्लस 2 sin A cosec A plus cosec square A. Similarly in the second one this will be cos square A plus 2 cos A sec A plus sec square A.
Okay friends, so we have used of this identity. It's a clear? Now we are going to use the trigonometrical identities. And what are these? To make their pairs. First one, this is sine and cos. So this is sine square A plus cos square A. Okay friends, this one is 2 sine into cos sec. Sine into cosec. Okay, and earlier I have told you that sin into cosec, क्योंकि sin का cosec क्या है, रेसिप्रोकल है, और किसी भी डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑलवेज प्रोडक्ट 1 होता है. cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2 cos A sec A and sec square is equal to 1 plus tan square A. Okay friends, now sin square plus cos square is equal to 1. This is 2 and sin into cosec equals to 1. Again 1. This is cot square. What's about the next one? Cos into sec is equal to 1. Again 1 plus tan square. ओके फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने यहाँ कितने सारे आइडेंटिटी यूज किए, वो सारे आइडेंटिटीज आपको होना चाहिए. फर्स्ट ये वाला कौन सा यूज किया आपने? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फर्स्ट यूज किया. सेकंड ये यूज किया साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1. फिर कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. कितने सारे आइडेंटिटी यूज हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में. उसके बाद में दिस वन कोस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1 एंड फाइनली सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. तो 1 2 3 4 5 आइडेंटिटीज यूज हो रही है फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन में. ओके, नाउ this is 1 2 1 ja 2 1 cot square A 2 1 ja 2 1 plus tan square A. Now make the sum of all numbers 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1. So friends, make the arrange the numbers सेपरेटली. ये जो नंबर्स हैं नंबर्स को अलग से मैनेज कर लें और इनको अलग से मैनेज कर लें. तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए. इट्स अ क्लियर. सो दिस इज 1 and 2 3 and 1 4 and 2 6 and 1 7. So that's way 7 plus कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए. Okay friends, and what is your right hand side? This is 7 plus tan square A plus cot square A. This is your right hand side. ये अपना right hand side आ गया. ठीक है. तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस आइडेंटिटीज में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं. तो अर्लियर we have discussed the various type of the problems and today we also discuss 3 and 4 type of the problems. ओके फ्रेंड्स, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने कल सॉर्ट आउट किया, कुछ को आज किया. तो इस तरीके से जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका आप सॉल्यूशन कीजिए. अर्लियर आई आल्सो टोल्ड यू दैट वीडियोस को बार बार देखें जिससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है. आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट में ज़रूर लिखिए. वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी आपको डाउट्स हो एक बार फिर से कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट.